Hello everyone, welcome to Kenny's Educare, a group of Kenny Solutions. In the last lecture, we started with lesson number 19, Life Cycle of Stars. Okay, so I hope now you are clear ki what you will be studying in this lesson uh, by seeing the last lecture, right? And in this lesson, we studied about what are the properties of star, what is galaxy, what are the different constituents of our solar system, what is the difference between star and a planet, what are the properties of sun, right? How the birth of the star takes place, how the stability is maintained of the star, right? This all things we have studied in the last lecture. So let us just have a look how we will define galaxy. You can say that galaxy is a collection of billions of stars, उनके planetary system and the interstellar cloud which is present in the empty space between the star. Now always remember the term interstellar cloud is very important because it is the interstellar cloud itself from which the stars are born. Okay, so remember this one point. Then remember three types के galaxies कौन से होते हैं. First is spiral, second is elliptical and third is irregular galaxies. Okay, and one more objective question which you need to remember is कि galaxies को या planets को देखने के लिए which instrument do you use. तो you will answer कि we use telescope. Okay, so these three questions are important in this. First is what is galaxy, for which you will include this answer from year to year. What are the types of galaxies? So there are three types of galaxies and you will write this much. And which instrument you need is telescope. Okay, so remember this three. देन वी सॉ कि टेलीस्कोप जो है उसको हम एक तो सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर भी रख सकते हैं एंड इट कैन ऑल्सो बी केप्ट एट अ डिस्टेंस. एंड यूनिवर्स पे एंड स्पेस पे स्टडी कौन करता है? दिस आर दी एस्ट्रोनॉमर्स हु स्टडी ऑन दोज. ओके, देन वी सॉ अबाउट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्टार एंड वी सॉ कि हम 4000 स्टार्स देख सकते हैं अपने नेक्ड आई से. एंड सन इज़ ऑल्सो एन ऑर्डिनरी स्टार विच वी कैन सी. एंड सन को हम ऑर्डिनरी स्टार क्यों बोलते हैं? Because it appears larger to us, okay, and it is also nearest to us. So there are billions of stars which have higher or lower mass, size and temperature, and because of this reason we call sun as an ordinary star. Okay, then stars क्या होते हैं? These are gigantic sphere of hot gases. Okay, इसको हमने क्या बोला था कि दिस गैसेस के अंदर क्या होता है? हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस एंड अदर लाइट एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन दिस, राइट. एंड जो यू विल बी शॉक टू नो कि सन किससे बना हुआ है. इट इज़ मेड अप ऑफ 72% ऑफ हाइड्रोजन, 26% ऑफ हीलियम एंड द रेस्ट 2% जो बचेगा इट विल बी अदर एलिमेंट विच विल बी हेवियर देन हीलियम. ओके, then we studied about the properties of mass and I told you to keep these things in your mind. You should know about the mass of the sun, the radius of the sun, the surface temperature of the sun, temperature at the center of the sun, and what is the age of the sun. Okay, at least you should remember what is the age of the sun. It is 4.5 into 10 raised to 9 years. Okay, and we also saw कि जो प्रॉपर्टीज़ है सन के, इट हैज़ नॉट चेंज्ड फ्रॉम 4.5 बिलियन ईयर्स अगो. एंड वी ऑल्सो सॉ द रीज़न बिहाइंड this कि why the properties of the sun are not changing. It is because of the gravitational force. Okay, and their scientists have told कि it might increase in the later years. Okay, then we saw about the size of the different stars and from this image you can come to know कि stars का size is not constant. Okay, it differs in all different types of stars. जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखोगे सुपर जाइंट स्टार तो इसका साइज़ विल बी डिफरेंट. सन का साइज़ इज़ डिफरेंट, वाइट ड्वार्फ स्टार का साइज़ विल बी डिफरेंट, रेड जाइंट स्टार का साइज़ इज़ डिफरेंट. तो द साइज़ ऑफ ऑल द स्टार्स विल बी डिफरेंट ओनली. ओके, then we studied about how the birth of the star takes place and I told you कि this interstellar cloud is very much important for the birth of the star. Okay, and ये we saw कि how the stability of the stars takes place and we saw this using an example here.
दिस एग्जाम्पल ऑफ टग ऑफ वॉर, राइट. जो सन एंड स्टार्स होते हैं दे नीड टू बी स्टेबल, राइट. एंड ये स्टेबिलिटी अगर उनको चाहिए तो दे नीड टू हैव दिस ग्रेविटेशनल फोर्स एंड गैस प्रेशर टू बी बैलेंस्ड. ठीक है, अगर बैलेंस बिगड़ा तो व्हाट विल हैपन, द स्टार कैन आइदर इट विल कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपांड, लाइक वी कैन विन और वी कैन जस्ट लूज. तो वैसे ही द स्टार कैन आइदर कॉन्ट्रैक्ट और आइदर दे कैन एक्सपांड. ओके, एंड आई टोल्ड यू कि अगर गैस प्रेशर नहीं होगा सन के पास तो सन कैन कोलैप्स ऑल्सो इन 1 to 2 hours. ठीक है, एंड जो गैस प्रेशर है डिपेंड्स अपॉन दी डेंसिटी एंड टेम्परेचर ऑफ द गैस, राइट. एंड जितना ज़्यादा डेंसिटी एंड टेम्परेचर होगा उतना ही ज़्यादा प्रेशर होगा सन का. ओके, सो रिमेंबर दिस 2 points. देन वी सॉ कि हाउ द स्टार्स आर फॉर्म. वी सॉ कि जो क्लाउड्स होते हैं दिस इंटरस्टेलर क्लाउड्स के अंदर अगर कोई भी डिस्टर्बेंसेस आएंगे इट विल स्टार्ट कॉन्ट्रैक्टिंग. अब ये कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होगा, डेंसिटी इंक्रीज होगी, बिकॉज ऑफ विच क्या होगा, टेम्परेचर विल ऑल्सो स्टार्ट टू इंक्रीज. तो जब डेंसिटी एंड टेम्परेचर इंक्रीज होगी तो व्हाट विल हैपन, एक स्पीयर फॉर्म होगा हॉट गैस का. ओके, एंड जब ये डेंसिटी एंड टेम्परेचर सेंटर ऑफ द स्पीयर पे आएगी, इंक्रीज होगी, व्हाट विल हैपन, एक एनर्जी जनरेट होगी विच विल बी कॉल्ड एज न्यूक्लियर एनर्जी. एंड बिकॉज ऑफ दिस न्यूक्लियर एनर्जी का जनरेशन दिस स्पीयर विल बिकम सेल्फ लुमिनियस. मतलब क्या है, इट विल स्टार्ट टू शाइन. ओके, लाइट आएगा उसमें से एंड वी कैन से कि एक स्टार फॉर्म हुआ है और अ स्टार इज बॉर्न. ओके, एंड जो सन होता है उनमें एनर्जी कैसे जनरेट होती है, इट इज़ जनरेटेड बाय द फ्यूजन. इट मीन्स व्हाट, मिक्सिंग ऑफ हाइड्रोजन न्यूक्लियाई टू फॉर्म हीलियम न्यूक्लियाई. इसका मतलब क्या है, हाइड्रोजन जो है सन में इट विल एक्ट एज अ फ्यूल. ओके, एंड ये फ्यूल कैसे आएगा, this fuel will burn and because of which energy will be generated for the sun to work. Okay, because sun also needs some kind of energy, right. तो उसको वो कहाँ से मिलता है, by burning of the hydrogen. Okay, so let's start with evolution of stars. It is an interesting concept, you will love it. कि अभी जैसे हमें पता है ह्यूमन बींग्स भी इवॉल्व हुए हैं फ्रॉम मंकी, राइट. एंसेस्टर्स को अगर आपने देखा होगा, वी ह्यूमन्स हैव इवॉल्व्ड, वैसे ही स्टार्स का इवोल्यूशन प्रोसेस भी हुआ है. ओके, सी इवोल्यूशन ऑफ अ स्टार मीन्स चेंज इन इट्स प्रॉपर्टीज विद टाइम रिजल्टिंग इन इट्स पासिंग थ्रू डिफरेंट स्टेजेस. ठीक है, स्टार का इवोल्यूशन मतलब क्या, उसकी कितनी प्रॉपर्टीज़ चेंज हुई है टाइम के साथ एंड उसका कितने डिफरेंट स्टेजेस आए हैं with respect to time. Okay, we have seen that the properties of the sun have not changed in the past 4.5 billion years, right. We have seen this in the last lecture and we discussed it today also. Then stars revolve very slowly for most of their lifetime. तो stars का evolution का process is very slow and जैसे जैसे stars will start continuously emitting their energy, तो उनकी energy जो है it will decrease constantly. Okay, because जैसे जैसे स्टार एनर्जी एमिट करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, अगर आप एक काम करोगे और यू विल एमिट, इफ़ यू आर स्पीकिंग टू मच तो यू आर यूजिंग योर एनर्जी. वैसे ही व्हेन स्टार विल बी एमिटिंग इट इज़ ऑल्सो यूजिंग इट्स एनर्जी, तो उसका एनर्जी लेवल विल डिक्रीज कॉन्स्टेंटली. ओके, एंड फॉर द स्टेबिलिटी टू रिमेन इंटैक्ट, दैट इज़ उनको बैलेंस बनाना पड़ता है ना गैस प्रेशर एंड ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में. तो ये बैलेंस मेंटेन करने के लिए इट इज़ नेसेसरी फॉर देम टू हैव अ कांस्टेंट टेम्परेचर. ओके, तो गैस प्रेशर एंड ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में अगर आपको बैलेंस बनाना है स्टार्स को, तो दे विल हैव टू हैव मेंटेन टेम्परेचर एंड डेंसिटी ऑल्सो. ओके, एंड फॉर द टेम्परेचर टू रिमेन कॉन्स्टेंट, एनर्जी जो है जनरेट हो रही है इनसाइड द स्टार, राइट. अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है तो कंटिन्यूसली एनर्जी भी जनरेट होनी चाहिए स्टार के अंदर. ओके, एंड ये एनर्जी जनरेट कैसे होगी, बिकॉज ऑफ द बर्निंग ऑफ फ्यूल एट द सेंटर ऑफ द स्टार. ठीक है, स्टार के सेंटर में फ्यूल बर्न करेगा, बिकॉज ऑफ इज द स्टार विल गेट एनर्जी एंड वंस द स्टार गेट द एनर्जी, टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा एंड देयर विल बी equal balance between the gas pressure and the gravitational energy. Okay, so see, the reason for the evolution of the star is the burning of
and therefore the decrease in the amount of the fuel in the center. तो reason क्या है उनमें changes आने के? burning of the fuel, and because the fuel is burning इसलिए जो amount of fuel है वो भी decrease होता जाता है, and this is the reason star का evolution होता गया है. Okay, see, when the fuel in the center finishes, what happens? एनर्जी नहीं होगी, क्योंकि जब तक फ्यूल का जनरेशन होगा तब तक स्टार्स को एनर्जी मिलेगी. टेम्परेचर विल रिमेन कांस्टेंट. इसके वजह से क्या होगा? बैलेंस मेंटेन रहेगा बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स एंड गैस प्रेशर, विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर देम. बट अगर फ्यूल ख़त्म हो जाएगा तो व्हाट विल हैपन? एनर्जी जनरेट नहीं होगी, टेम्परेचर डिक्रीज़ हो जाएगा. इसके वजह से क्या होगा? गैस प्रेशर एंड ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में जो बैलेंस मेंटेन करना है वो मेंटेन नहीं हो पाएगा, राइट? एंड इसकी वजह से क्या होगा? एज ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ नाउ हायर देन द गैस प्रेशर, तो क्या होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा हो जाएगा गैस प्रेशर से, तो द स्टार विल स्टार्ट कॉन्ट्रैक्टिंग. ओके, नाउ सी, दिस इज़ द लाइफ साइकिल ऑफ द स्टार. स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? आई टोल्ड यू कि ओरिजिन क्या है स्टार्स का? इट इज़ द इंटरस्टेलर क्लाउड. तो इंटरस्टेलर क्लाउड से इट विल बिकम हाई मास स्टार, then it will become super giant, then it will become supernova explosion. and जब ये supernova का explosion होगा it will form two types of star. एक तो neutron star and दूसरा is black hole. okay, I think so you every one of you know about this black hole. ठीक है, तो if it is high mass star this will happen. if it is low mass star तो क्या होगा? low mass star will become giant star. it will explode and will form a white dwarf. okay, so it is important for you to remember this life cycle of the star. ठीक है, remember origin क्या है star का? it is interstellar cloud, and if it is a high mass star it will get converted into supergiant star, and then supernova explode होगा and it will form either neutron star or a black hole. ठीक है, एंड अगर इंटरस्टेलर क्लाउड के अंदर लो मास स्टार होगा, दैट लो मास स्टार विल फॉर्म रेड जाइंट, एंड दिस रेड जाइंट विल देन एक्सप्लोड. एक्सप्लोजन विल टेक प्लेस एंड यू विल गेट मैनी वाइट ड्वार्फ स्टार्स. ओके, ड्वार्फ मीन्स स्मॉल स्टार्स. ओके, सो दिस इज हाउ द इवोल्यूशन ऑफ द स्टार इज बेस्ड ऑन द मासेस एंड देयर एंड स्टेजेस. तो आपको यहाँ पे क्या याद रखना है? एक तो लो मास स्टार है तो उसका एंड स्टेज क्या है? इट इज़ वाइट ड्वार्फ. अगर इट इज़ अ हाई मास स्टार तो उसका एंड स्टेज इज न्यूट्रॉन स्टार और अ ब्लैक होल, और यू कैन ऑल्सो रिमेंबर इट एज सुपरनोवा एक्सप्लोजन. बट रिमेंबर वन थिंग, एक्सप्लोजन होना ही है इन बोथ द केसेस. इन लो मास स्टार ऑल्सो एक्सप्लोजन टेक्स प्लेस, एंड इन हाई मास स्टार ऑल्सो सुपरनोवा का एक्सप्लोजन टेक्स प्लेस. ओके, एंड जाइंट ही फॉर्म होगा. लो मास में रेड जाइंट फॉर्म हो रहा है, हाई मास में सुपर जाइंट फॉर्म हो रहा है. तो इट इज़ अ वेरी ईजी कॉन्सेप्ट विच यू कैन रिमेंबर. ओके, so I hope you have understood ki how the evolution of the star takes place on the basis of the mass. ठीक है, now see, this causes another fuel to start burning. यहाँ पे अभी हमने क्या डिस्कस किया? अगर फ्यूल ख़त्म हो गया तो एनर्जी जनरेट नहीं होगी, एनर्जी जनरेट नहीं होगी तो टेम्परेचर चेंज होगा, टेम्परेचर चेंज होगा तो गैस प्रेशर एंड ग्रेविटेशनल एनर्जी के बीच का जो बैलेंस मेंटेन होना है वो भी नहीं हो पाएगा, एंड बिकॉज ऑफ विच ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा हो जाएगा गैस प्रेशर से, एंड द स्टार विल स्टार्ट कॉन्ट्रैक्टिंग. ओके, अब इसके वजह से क्या होगा? जब स्टार कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो अनदर फ्यूल विल स्टार्ट बर्निंग. दैट एग्जाम्पल, जब हाइड्रोजन एट द सेंटर इज फिनिश्ड, वी नो दो गैस प्रेजेंट होता है, एक तो हाइड्रोजन एंड हीलियम. तो जब हाइड्रोजन फिनिश हो जाएगा तो हीलियम विल स्टार्ट अंडरगोइंग फ्यूजन. ठीक है, एंड एनर्जी जनरेशन स्टार्ट्स अगेन. ठीक है, तो हाइड्रोजन ख़त्म होने के बाद उनके पास हीलियम का ऑप्शन है. हीलियम क्या करेगा? फटाफट फ्यूजन करना चालू करेगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट एनर्जी जनरेशन विल टेक प्लेस. ओके, हाउ मेनी फ्यूल्स विल बी यूज्ड डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ द स्टार. अब हाइड्रोजन के बाद हीलियम कितना यूज़ होना है, इट विल डिपेंड वेदर इट इज़ अ लो मास स्टार और अ हाई मास स्टार. ओके, नाउ सी, हायर द मास ऑफ द स्टार हायर इज़ द नंबर ऑफ द फ्यूल यूज्ड. जितना ज़्यादा उसका स्टार का मास होगा उतना ज़्यादा फ्यूल यूज़ होगा. ओके, एंड ड्यूरिंग दिस अ लॉट ऑफ चेंजेस अकर इन द स्टार, बिकॉज यहाँ पे फ्यूल ज़्यादा यूज़ होगा तो द स्टार में बहुत सारे चेंजेस आएंगे. ओके,
And as a number of processes occur inside the star, it sometimes contracts and expands at the other time, and star goes through different stages. ओके तो जैसे ही प्रोसेसेस इंक्रीज हो रहे हैं डिक्रीज हो रहे हैं उसके हिसाब से द स्टार विल एक्सपांड कंट्रैक्ट एंड योर यू कैन से कि स्टार विल अंडरगो डिफरेंट स्टेजेस और डिफरेंट फेजेस. ओके नाउ व्हेन ऑल पॉसिबल फ्यूल्स आर एग्जॉस्टेड, व्हाट डज इट मीन? अगर हाइड्रोजन भी ख़त्म हो गया तो इट हैज़ द ऑप्शन ऑफ हीलियम, पर अगर हीलियम भी ख़त्म हो गया तो व्हाट विल हैपन? द एनर्जी जनरेशन विल स्टॉप, राइट. इसके वजह से क्या होगा? टेम्परेचर भी स्टार का डिक्रीज़ हो जाएगा. टेम्परेचर डिक्रीज़ हो गया तो ग्रेविटेशनल फोर्स एंड गैस प्रेशर के बीच में जो बैलेंस मेंटेन करना है वो भी बैलेंस नहीं हो पाएगा, राइट. सो अगर फ्यूल्स एग्जॉस्ट हो गए तो दिस विल हैपन, द बैलेंस बिटवीन द गैस प्रेशर एंड द ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी मिसबैलेंस्ड. ओके एंड एज आई टोल्ड यू, अगर गैस प्रेशर नहीं होगा सन के पास तो व्हाट विल हैपन? इट कैन कोलैप्स ऑल्सो. ठीक है. सो लेट अस नाउ सी हाउ द इवोल्यूशन ऑफ द स्टार एंड्स and what the end stages of these stars are. Okay, so here you will be studying about 3 stages, end stages of the star. First stage is end stage of star having initial mass less than 8 times of the mass. Okay, mass से. Then second is having mass between 8 and 25 times the mass of the sun. And the last is larger than 25 times the mass of the sun. Okay, so here you will be studying about these 3 stages. Let's start. See, the higher the mass of the star, faster is its rate of evolution. जितना ज़्यादा मास होगा स्टार का उतना ज़्यादा जल्दी वो इवोल्यूशन होगा उसका. ओके एंड डिफरेंट स्टेजेस ड्यूरिंग द इवोल्यूशन ऑफ द स्टार विच इज़ द पाथ ऑफ द इवोल्यूशन डिपेंड्स ऑन इट्स मास. एंड सारा स्टेजेस जो है इवोल्यूशन का इट विल ऑल्सो डिपेंड अपॉन द मास ओनली. ओके सो व्हाट डू यू थिंक हाउ द इवोल्यूशन विल फाइनली स्टॉप? अभी हमने लास्ट वाले स्लाइड में देखा कि जब हाइड्रोजन एंड हीलियम यूज्ड अप हो जाएंगे दे विल नॉट हैव एनी फ्यूल टू बर्न. फ्यूल नहीं होगा तो एनर्जी जनरेट नहीं होगी, एनर्जी नहीं होगा तो बैलेंस बिटवीन द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड गैस प्रेशर विल बी मिसबैलेंस्ड, राइट. तो द सेम थिंग विल हैपन. अगर इवोल्यूशन नहीं होगा तो सेम थिंग विल हैपन. सी, एनर्जी जनरेशन विल स्टॉप, टेम्परेचर विल डिक्रीज एंड द गैस प्रेशर विल ऑल्सो डिक्रीज, एंड बिकॉज ऑफ इट्स द सन कैन इवन कोलैप्स इन 1 to 2 hours, right. Okay, तो the star contracts and its density increases. Okay, अगर स्टार कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो what will happen? उसकी डेंसिटी इंक्रीज होगी. अगर डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी तो न्यू टाइप्स ऑफ प्रेशर विल बी जनरेटेड और वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेंगी. ओके सी, स्टार कॉन्ट्रैक्ट किया, डेंसिटी इंक्रीज हुई, डेंसिटी जब ज़्यादा हो जाएगी तो what will happen? नए टाइप के प्रेशर्स आएंगे एंड ये ऐसे प्रेशर आएंगे विच विल नॉट डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर. ओके एंड इन सच केस द गैस प्रेशर रिमेन्स कॉन्स्टेंट इवन आफ्टर द एनर्जी जनरेशन स्टॉप्स कम्प्लीटली. सो यू माइट हैड अ क्वेश्चन बिफोर कि अगर यहाँ पे गैस प्रेशर कभी भी गलती से भी कम हो गया तो द सन विल कोलैप्स, तो इट इज़ रिस्की ना. बट व्हाट हैपन्स हियर, यहाँ पे स्टार अगर कॉन्ट्रैक्ट कर गया उस टाइम, स्टार यूजुअली कॉन्ट्रैक्ट करेगा उस टाइम जिसके वजह से उसकी डेंसिटी इंक्रीज़ होगी. ओके डेंसिटी इंक्रीज़ होने के बाद क्या होगा? प्रेशर जनरेट होगा एंड दिस प्रेशर विल नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर बिकॉज व्हेन वी सॉ हियर यहाँ पे एनर्जी जनरेशन स्टॉप होती है, उसके बाद टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है एंड बिकॉज टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा है तो ही गैस प्रेशर डिक्रीज़ हो रहा है, राइट. तो अगर ऐसा प्रेशर आ गया जो टेम्परेचर पे डिपेंड ही नहीं करता तो ऑब्वियसली बात है द प्रॉब्लम इज़ सॉल्व्ड, राइट. तो इस केसेस में गैस प्रेशर विल रिमेन कांस्टेंट इवन आफ्टर द एनर्जी जनरेशन स्टॉप्स कम्प्लीटली एंड द टेम्परेचर गोज ऑन डिक्रीजिंग. ओके तो यहाँ पे क्या करना है? सिर्फ स्टार को कॉन्ट्रैक्ट करना है एंड डेंसिटी इंक्रीज करनी है, रेस्ट द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड ऑटोमेटिकली. ओके the stability of the star can remain intact forever and this can be considered as the end stage of the star. So this is the end stage of the star. Okay, and there are 3 ways of evolution of the stars depending on their initial masses. So I hope so you have observed here कि यहाँ पे हमने देखा 8 times less,
then 8 to 25 times less, then larger than 25 times. तो यहाँ पे हम मास के बारे में बात कर रहे हैं, राइट. तो यहाँ पे जो इवोल्यूशन है डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल मास ऑफ द स्टार. ठीक है. Thus we can divide the star in 3 groups. The path of the evolution and the end stage for all the stars in the same group is the same. Okay, the path of revolution and the end stage will be same, just their mass will differ. Okay, so let us learn more about it. See, first stage is end stage of stars having initial mass, which will, this star ka mass will be less than 8 times the mass of the sun, which you can write mass, star ka mass is less than 8 times the mass of the sun. Okay, now see, star in this group undergo huge expansion and the radius will increase by a factor of 100 to 200. ठीक है. तो स्टार्स का यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टार्स विल एक्सपांड एंड व्हाट विल हैपन, उनका जो साइज है, उनका रेडियस विल इंक्रीज बाय 100 to 200 फैक्टर. ओके, इस स्टेज में हम इनको क्या बोलते हैं, दिस आर कॉल्ड एज रेड जायंट स्टार. ओके, रेड जायंट स्टार हमने कहाँ पे देखा था. सी, जब लो मास स्टार आएगा, बिकॉज इसका मास कितना कम है, इट इज़ लेस देन 8 टाइम्स लेस देन द सन, मतलब इसका मास कम है, तो इट इज़ अ लो मास स्टार, राइट. लो मास स्टार किसमें बाद में कन्वर्ट होता है, इट कन्वर्ट्स इनटू रेड जायंट स्टार, राइट. नाउ दिस नेम इज़ गिवन बिकॉज ऑफ द लार्ज साइज एंड बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट स्टार्स लुक रेडिश ड्यू टू देयर लोअर टेम्परेचर, बिकॉज यहाँ पे उनका टेम्परेचर कम होगा एंड दिस इज़ द रीज़न स्टार विल अपीयर रेड एंड that is the reason it is called as red giant star. Okay, the size of the red giant star in comparison to the other types of star is given in figure 19.2. so this is the, see, this is the size, or you can imagine the mass of the star कि कैसा होगा red giant का. see the image of the red giant star, right, it is larger in size, right. Now see, at the end of its evolution, these stars explode. I told you कि वो low mass star हो या high mass star हो, what will happen, they will explode. and अगर low mass star होगा, it will form white dwarf. and अगर high mass star होगा, तो what will form, they will form neutrons and black hole, right. तो here because we are studying about low mass star, वो red giant में convert होगा, this red giant will explode and what will happen, white dwarf star will form. Okay, so just see what is written there. See, at the end of its evolution, the star will explode and their outer gas envelope is thrown out. Okay, gas envelope will be thrown out and the outer part is thrown out, inner part will contract and the size will become similar to the size of the earth. Okay, तो ये it will become equal to the earth का size. now as the mass of the star is much higher than that of the earth and the size is similar to that of the earth. see, यहाँ पे star का ना size will become similar, but जो mass होगा star का, it will be higher than the earth. okay, इस वजह से क्या होगा, density जो है star की, it will become very high. and इस state में आप बोल सकते हो कि जो pressure है ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स. ओके, तो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे स्टार के पास, दे विल बिकम इंडिपेंडेंट, दे विल नॉट डिपेंड ऑन द टेम्परेचर. ओके, एंड अगर वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेंगे, इट मीन्स व्हाट, दे विल ऑलवेज मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स एंड द गैस प्रेशर, राइट. so they will balance the gravitational force forever. and in this state what will happen, the star looks white and due to its small size, इसको हम क्या बोलते हैं, white dwarf. okay, and after this its temperature comes decreasing because of its size and mass, it will remain unchanged forever. उसका size कभी increase नहीं होना ना कभी decrease होना है. okay, and neutron star is the end stage of this star. okay, white dwarf के बाद क्या बनेगा, neutron star. it will be the end stage of this star. sorry, I just took the another slide. okay, so forever and so white dwarf is the end stage. now remember जब remember this diagram only, अगर low mass star है तो what will happen, it will get converted into red giant, right.
रेड जाइंट बनने के बाद what will happen? ये रेड जाइंट will get converted into, it will explode. It will not get converted into anything. It will explode and it will form white dwarf. This is the thing which is given in this, so remember this much. ठीक है, low mass star will get converted into red giant will explode and it will form a white dwarf star. So white dwarf star is the end stage of this, so it can be asked in objective also, so remember it thoroughly. Okay, now do you know when the sun will become a red giant? We saw अभी red giant बनता है फिर वो explode होता है, right? तो जब वो रेड जाइंट बनेगा तो इट्स डायमीटर विल इंक्रीज सो मच दैट इट विल स्वॉलो द मर्क्यूरी एंड वीनस. इतना बड़ा उसका डायमीटर हो जाता है कि इट कैन स्वॉलो द मर्क्यूरी एंड वीनस ऑल्सो. सो इट इज़ पॉसिबल दैट द अर्थ विल ऑल्सो बी एब्जॉर्ब बाई द सन. तो सन हैज़ दैट मच कैपेसिटी कि इट कैन एब्जॉर्ब द अर्थ ऑल्सो. ओके, इट विल टेक 4 to 5 billion years for the sun to reach this state. So there are many more 4 to 5 billion years and to reach this state when it can absorb the earth also. Okay, now second stage you can see is end stage of the star having mass between 8 and 25 times the mass of the sun. ठीक है, it means what? Mass of the sun can be 8 times smaller than mass of the star, or it can be greater than 25 times mass of the sun. Okay, now see यहाँ पे क्या होगा? It is a supernova explosion. Supernova explosion, it means what? It is a high mass star. High mass star will become what? Just let us go with this life cycle. Remember this and you will be clear with all the concepts. High mass star है, it will become super giant. This super giant will form supernova. Supernova का फिर explosion होगा and it can either form neutron star or it will form a black hole. Okay, so just have a look on this. Second stage में क्या होगा? These stars also go through the red giant stage and later through the super giant stage, during which their size may increase 1000 times. तो जब ये super giant stage में आते हैं तो ये star का size कितना increase होता है? It increase 1000 times. Okay, and the huge explosion called as supernova explosion will occur and will last for a very light time and it will be very powerful. इस वजह से क्या होगा? So much energy is given off that we can see the star during the day also. So if it happens तो हमें दिन में भी stars दिखेंगे. Okay, and what happens? Supernova explosion अगर हुआ तो we can see the stars during daytime also. Okay, the central portion which is left behind after the explosion, it may contract and it may contract as size becomes as small as about 10 kilometers. इस स्टेट में क्या होगा? स्टार जो है इट विल बिकम कम्प्लीटली न्यूट्रॉन्स ही होंगे. दे विल नाइदर हैव पॉजिटिव चार्ज नाइदर हैव नेगेटिव चार्ज. न्यूट्रल चार्ज होगा उनके पास एंड इनको हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रॉन स्टार्स. ओके, एंड द प्रेशर ऑफ दिस न्यूट्रॉन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर एंड इज केपेबल ऑफ अगर कोई भी स्टार इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, इट मीन्स वॉट? इट कैन मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड द गैस प्रेशर. रिमेंबर दिस थिंग. ओके, एंड जब मास ज़्यादा होगा 8 to 25 टाइम्स मास ज़्यादा होगा उस टाइम द एंड स्टेज विल बी न्यूट्रॉन स्टार विल बी द एंड स्टेज फॉर दिस. ओके, नाउ द थर्ड एंड स्टेज we will study, but before that there are two important points which you should know. As the size of the white dwarf is similar to that of the earth, इनका density भी कैसा होता है? It is very large. One spoonful material of the white dwarf will weigh a few tons. तो एक spoon white dwarf star उनका weight कितना हो सकता है? It can go into tons also. Okay, and as neutron stars are much smaller than the white dwarf, neutron star which we saw here, इनका size it is small than white dwarf, इनका density will be even higher, and one spoonful of this star will weigh the weight of all living beings which are present on the earth. Okay, now the second point, see, a star in our galaxy exploded about 7500 years back. So already our galaxy has been exploded, and as the star is about 6500 light years away from us, light emitted in the explosion
तो जो लाइट एमिट हुआ था ड्यूरिंग द गैलेक्सी एक्सप्लोजन, इट टुक 6500 years to reach us. Okay, and it was first seen on the earth by the Chinese in the year 1054. Okay, and it was so bright that it could be seen during the day also for 2 years. 2 years तक दिन में उनको दिख रहा था ये. Okay, and after 1000 years of explosion, the gas emitted during the explosion are seen to be expanding with velocities higher than 1000 km per speed. इतने ज़्यादा speed के साथ it is spreading all over. Okay, so now last is the third stage of the star, which will be having its mass larger than 25 times the mass of the sun. Okay, see, these stars evolve like the star in the second group. ये भी बनेंगे star in the second group we studied. But after the supernova explosion तक same process होगा. पर supernova explosion के बाद क्या होगा, कोई भी pressure, it will not be capable of balancing the huge gravitational force and the gas pressure. Okay, तो यहाँ पे जो balance maintain हो जाता है वो maintain नहीं हो पाएगा. एंड जैसे जैसे उनका साइज़ छोटा होता जाएगा, उनकी डेंसिटी एंड ग्रेविटेशनल फोर्स विल इंक्रीज. ओके, एंड ऑल द नियर बाय ऑब्जेक्ट विल गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स दिस स्टार एंड नथिंग कैन कम आउट ऑफ देम. अभी आपने ब्लैक होल के बारे में सुना है, राइट? तो ब्लैक होल के अंदर सब चले जाएंगे तो दे कांट कम बैक. ओके, एंड उसके अंदर से लाइट भी वापस नहीं आने वाली है ब्लैक होल के अंदर से. ओके, ऑल्सो एनी लाइट फॉलिंग ऑन द स्टार डज नॉट गेट रिफ्लेक्टेड एंड गेट्स एब्जॉर्ब्ड इनसाइड द स्टार. सी, एज आई टोल्ड यू, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड गैस प्रेशर के बीच में एक बैलेंस मेंटेन करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर वो बैलेंस नहीं हो पाएगा तो व्हाट विल हैपन, ब्लैक होल फॉर्म होगा. ओके, Thus we cannot see the star at all, but can probably see a minute black hole at its place. आपको star नहीं दिखेगा, but you can see this a black hole. Okay, this end stage of the star is therefore called a black hole. Thus we have seen that depending on the mass, there are 3 paths of evolution and 3 stages of the star, right? And these are shown here. जब उसका mass will be लेस देन 8 times द मास ऑफ द सन, तो इसका एंड स्टेज क्या होगा, इट विल बी वाइट ड्वार्फ. ठीक है, अगर इसका मास विल बी बिटवीन 8 and 25 times द मास ऑफ द सन, देन द एंड पॉइंट विल बी न्यूट्रॉन स्टार. ओके, एंड इफ द मास इज ग्रेटर देन 25 times द मास ऑफ सन, तो इट विल बी अ ब्लैक होल. ओके, तो ब्लैक होल वाला सिचुएशन कभी नहीं आना चाहिए. ओके, सो आई होप you have understood all the contents or all the topics which I have covered in this lesson, the life cycle of the star. Okay, so we are done with the lesson. Thank you everyone.